عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین گرامی، میں آپ کو بی جے پی کی گاڑیوں پر ہوئے پتھراؤ کی وہ تصاویر دکھانے کی کوشش کروں گا۔ دن دہاڑے خاتون کو چھیڑنے کی دلی کے ایک علاقے میں کوشش ہوتی ہے تو اس کا بچہ، اس کا بھائی جو 17 سالہ ہے، روکنے کی کوشش کرتا ہے تو دبنگ کس طرح اس پر حملہ کرتے ہیں وہ دکھاؤں گا۔ میں آپ کو بی جے پی لیڈر کی ویڈیو دکھاؤں گا جو الیکشن کمیشن کا مذاق اڑاتا نظر آ رہا ہے، گجرات سے آ رہی ویڈیو ہے۔ تو میں آپ کو یہ بھی دکھاؤں گا کہ کس طرح کسان آندولن میں پہنچ کر کے نیشنل میڈیا کا ایک رپورٹر اس کی رپورٹنگ صحیح طور پر نہ کرنے کی وجہ سے جو ہے استعفیٰ دے دیتا ہے۔ وہ ویڈیو وائرل ہو رہی ہے۔ یو پی میں پھر سے شرمناک واقعہ پیش آیا ہے، اور بھی بہت ساری خبریں ہیں ناظرین، جس میں سڑک پر چلنے لگی پوری عمارت کی ویڈیو میں دکھا کر کے تبصرہ کروں گا۔ تو میں آج عراق کے سابق صدر صدام حسین کی بیٹی کی عراق میں کیا سیاست میں واپسی ہو رہی ہے اس پر بھی، اور بنگال کی حکومت کو آخر ائمہ مساجد یاد آ گئے ہیں، وہ بھی خبر سنانے کی کوشش کرتے ہوئے تفصیلات سے پیش کروں گا۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے سبسکرائب کر لیں، ہماری ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی، ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، اس کو کیا کرنا ہے آپ لوگ جانتے ہیں۔ ہمارا اس وقت کا اگلا ٹارگیٹ 2 ملین سبسکرائبرز ہے، اس لیے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جوڑنے کی اور سبسکرائبرز بنانے کی ذمہ داری آپ لوگوں کی بنتی ہے۔ بہرکیف آئیے چلتے ہیں اور بات کرتے ہیں، سب سے ویڈیوز کے حوالے سے کچھ خبریں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں۔ سب سے پہلے یہ ویڈیو دیکھ لیجئے کسان آندولن کو لے کر کے جس طرح سے نفرت کی رپورٹنگ اس وقت گودی میڈیا میں ہو رہی ہے، اور حقیقت دکھانے کے بجائے جھوٹ دکھانے کی جو کوششیں ہو رہی ہیں وہ سب باتیں آپ لوگ جانتے ہیں۔ ایسے میں اس وقت نیشنل میڈیا میں کام کرنے والے رپورٹر بھی پریشان ہو چکے ہیں۔ وہ زمینی سطح پر جاتے ہیں، سچ اور حقائق کو کلیکٹ کرتے ہیں، اس کی ویڈیوگرافی بناتے ہیں، بہت ہی اچھے انداز میں اس کو چینل میں بھیجنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن چینل اس کو ریجیکٹ کر دیتا ہے، زمینی حقائق کو سچ دکھانے کو تیار نہیں ہوتا۔ ایسے میں ایک نیشنل میڈیا کا رپورٹر، کہا جا رہا ہے کہ اے بی پی نیوز کا یہ رپورٹر جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں گفتگو کرتے ہوئے، ایک کسان آندولن میں پہنچتا ہے۔ میرٹھ میں یہ مہا پنچایت ہو رہا ہوتا ہے کسانوں کا، تو اس وقت وہ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ صحیح رپورٹ میڈیا کے چینلوں کو دکھانے کی کوشش کر رہا ہے، بھیجتا ہے، لیکن اس کی رپورٹ نہیں دکھائی جا رہی۔ اس وجہ سے میں ابھی اسی وقت اپنے اس جاب کو چھوڑتا ہوں اور مستعفی ہوتا ہوں کہتے ہوئے وہ وہاں پر اپنی ناراضگی کا اظہار کرتا ہے۔ اس ویڈیو کے بعد یہ بات واضح طور پر سامنے آ جاتی ہے کہ کس طرح سے جو ہے اس وقت میڈیا صرف اور صرف مودی کے گنگانے میں لگا ہوا ہے اور حقائق نہیں دکھا رہا۔ آواز کے ساتھ اس ویڈیو کو تھوڑا سا سنیں، پھر میں اگلی خبر کی جانب بڑھتا ہوں۔ میرے ماں باپ نے مجھے اپنے خون پسینے کی کمائی سے پڑھایا اور میں نے اس پیشے کو چنا۔ کیوں چنا؟ کیونکہ سچ دکھانا تھا مجھے، لیکن نہیں دکھانے دیا جا رہا۔ لاکھ مارتا ہوں ایسی نوکری کو، ایسی زندگی کو۔ آج کچھ دکھاؤں گا۔
साथ कॉर्पोरेट कवर किया, बैंकिंग कवर किया, फाइनेंस कवर किया, इंश्योरेंस कवर किया। आज तक एक चवन्नी का कोई मेरे ऊपर आरोप नहीं लगा सकता। ठीक है सर, आज की तारीख में मेरी तनख्वाह 12,07,000 रुपए है। साल का मेरा पैकेज 12,07,000 रुपए का। इसके अलावा मुझे कुछ आता नहीं। 15 साल मैंने यही किया है, यही। तो मैं तो कोई दुकान भी नहीं खोल सकता, मैं तो कोई व्यापार भी नहीं कर सकता। बाप को मरे मेरे 10-12 साल हो गए, घर का अकेला लड़का हूँ, बूढ़ी माँ है, बीवी। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आइए मैं आपको एक और ख़बर की जानिब ले चलूँ और बताऊँ कि दिल्ली की सड़कें इस वक्त किस तरह से जो है गैर महफूज हो चुकी हैं। इस वक्त एक मीडिया से गुफ्तगू करते हुए खातून जिसका चेहरा छुपाया गया है, उसने इल्ज़ाम पुलिस पर भी लगाया है। वो दिल्ली के कालकाजी इलाके में जा रही थी कि कुछ लोगों ने, कुछ लड़कों ने उस पर जो है उसके साथ छेड़खानी की, जिस्मानी हरासानी करने की कोशिश की। इस दरमियान में उसके साथ चल रहे 17 साल उसका भाई ने उसको रोकने की तो वो ग्रुप, जो गुंडों का ग्रुप था, उसने उसको इस कदर मारा कि वो इस वक्त अस्पताल में जो है मौत और ज़िंदगी के बीच में लड़ रहा है। इस खातून ने कहा कि वो पुलिस थाने भी गई, लेकिन पुलिस थाने जाने के बाद जो है पुलिस उसकी शिकायत दर्ज कराने के बजाय खून कहाँ है, कहाँ मारा गया, इस तरह की उल्टे सीधे सवालात करने लगा, जिसकी वजह से जो है वो पूरी तरह से परेशान हुई। लेकिन उसके बाद एक और पुलिस ऑफिसर ने आकर के उसका मामला दर्ज करने की ये बात कही है। ये है आम आदमी पार्टी का वो दिल्ली जो दावा करते आम आदमी पार्टी के उसके रास्ते महफूज हैं, ख़वातीन महफूज हैं, लेकिन दिल्ली में दिन दहाड़े क्या कुछ हो रहा है, इस खबर से और इस लड़की के बयान से वाज़ेह तौर पर सामने आता है। आइए नाज़रीन गिरामी आगे बढ़ते हैं और कुछ वेस्ट बंगाल, मगरबी बंगाल की तस्वीर देख लीजिएगा, जहां पर नाराज़ अवाम ने यहाँ पर जो आने वाले इलेक्शंस हैं उसकी इंतखाबी मुहिम के लिए ये गाड़ियाँ रुकवाई हुई थी, तो किस तरह से जो उसके शीशे तोड़ दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि नाराज़ अवाम की जानिब से ये नाराज़गी जताई जा रही है और मारा जा रहा है, लेकिन बीजेपी ने यहाँ पर भी जो है टीएमसी के कारकुनान पर ये इल्ज़ाम लगाया है कि टीएमसी कारकुनान ने अपनी हुकूमत के पीछे छुपते हुए ये सब कार्रवाई कर रही है, उनकी गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है, ये कहते हुए जो है इन तस्वीर को शेयर करने की कोशिशें हुई हैं। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, बंगाल असम्बली इलेक्शन के लिए तारीख़ों का ऐलान हो चुका, आप जानते हैं। अब हर सियासी जमात वोटरों को मुतवज्जह करने की कोशिशों में है। ऐसे में गुज़श्ता कई सालों से यहाँ के मसाजिद के अइम्मा व मुअज्जिन भी अपने कई सारे मुतालबात यहाँ की टीएमसी हुकूमत के सामने रख रहे थे, लेकिन टीएमसी हुकूमत को और वहाँ के एमपीज़ को कहें या फिर वहाँ के वज़रा को कभी इमाम व मुअज्जिन याद नहीं आए, लेकिन इलेक्शन आया तो याद आ गए। ये वही इमाम है जो गुज़श्ता 10 बरसों से वजीफ़े में इजाफे के मुतालबे पर कलकत्ता की सड़कों पर एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन रियासती वज़ीर को आज फुर्सत मिली और वो भी ऐसे वक्त में जब इलेक्शन के लिए तारीख़ों का ऐलान हो चुका। रियासती वज़ीर फरहाद हकीम ने न सिर्फ अइम्मा मसाजिद से मुलाकात की, बल्कि उनके मुतालबात को सही मानते हुए यकीन दिलाया कि अगर उनकी हुकूमत बनती है तो इन मुतालबात को तस्लीम किया जाएगा, जबकि अभी भी उन्हीं की हुकूमत है। आप सिर्फ इस लफ्ज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि धोखा किस तरह दिया जाता है। अभी तक इन्हीं की हुकूमत थी और मुतालबात पूरे नहीं हुए, और आइंदा जीतने के बाद कहा जा रहा है कि उनके मुतालबात को तस्लीम किया जाएगा। यानी आइंदा जब जीत करके आएंगे उस वक्त भी यही कहते रहेंगे 5 साल तक, फिर इलेक्शन आएंगे, फिर ये लोग एहतजाज करेंगे, फिर इनके पास आएंगे, कहेंगे फिर अगली मरतबा अगर आप हमें वोट दे करके जिताएंगे तो फिर आपके मुतालबात को माना जाएगा। ये सियासी लोगों से हम लोग अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं और वाकिफ़ होना चाहिए कि जो है किस तरह धोखा देते। बहरकैफ साल 2009 में ऐसा ही मौका था जब वज़ीर आला ममता बनर्जी बंगाल असम्बली इलेक्शन में जीत के लिए सख्त जद्दोजहद कर रही थी और हर तबके व फ़िरक़े के लोगों से मुलाकात कर रही थी। उन्होंने उस वक्त अइम्मा मसाजिद से भाई मुलाकात करते हुए उन्हें मुआवजा देने का ऐलान किया था, और जब ममता बनर्जी को तारीख़ी कामयाबी हासिल करते हुए इक़्तिदार की कुर्सी मिली तो इमाम मुअज्जिन के लिए 2500 और 1000 रुपये वजीफ़ा दिए जाने का ऐलान किया गया, लेकिन वजीफ़े की ये रकम अइम्मा मसाजिद की माली पसमानदगी को दूर करने में नाकाम रही। उसके इजाफे का मुतालबा करते रहे, लेकिन इजाफा नहीं हुआ। अब इलेक्शन आ रहे हैं तो उसको इजाफा करने का यकीन दहानी इलेक्शन जीतने के बाद हो रहे हैं। बहरकैफ इस वज़ीर के, रियासती वज़ीर के इस वक्त शिरकत करने को लेकर के अलग अलग तबसरे जारी हो चुके हैं। ज़ाहिर सी बात है इलेक्शन के करीब आप जाएंगे और इस तरह का जो है वादा करेंगे तो आपकी तो खिंचाई ज़रूर होगी। आइए नाज़रीन, मैं आपको ले चलूँ अगली ख़बर की जानिब, और वो है
बीजेपी रुकने असम्बली किस तरह इलेक्शन कमीशन का मजाक उड़ा रहे हैं। यह है तो गुजराती ज़बान में, लेकिन उसकी तफसीलात सुनाता हूँ। गुज़िश्ता दिनों गुजरात में म्यूनसिपल इलेक्शन का नतीजा बरामद हुआ, जिसमें बीजेपी उम्मीदवारों को ज़बरदस्त कामयाबी हासिल हुई। अब इस इलेक्शन से पहले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें बीजेपी रुकने असम्बली मधु श्रीवास्तव एक इलेक्शन कमीशन का मजाक बनाते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में कह रहे हैं, आज इंतखाबी तशहीर का आखिरी दिन है, लेकिन मैं कल भी तशहीर करूँगा। मैं इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक को नहीं मानता। बीजेपी रुकने असम्बली मधु श्रीवास्तव का हैरान करने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी के साथ इस वक्त फैल रहा है और बीजेपी को भी कटहरे में खड़ा कर रहा है। बताया जाता है कि वीडियो गुजरात म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन के दौरान बना था और वडोदरा के रुकने असम्बली मधु श्रीवास्तव ने इलेक्शन कमीशन को एक तरह से नज़रअंदाज कर दिया। कई लोग इस वीडियो पर बीजेपी रुकने असम्बली को सख्त तनकीद का निशाना बना रहे हैं और कई लोगों ने इस वीडियो का मजाक भी बनाया। एक शख्स ने लिखा है, कुछ भी कहने से पहले सोचना तो चाहिए, जबकि एक दीगर ने लिखा, इलेक्शन कमीशन हुकूमत का पट्टू बन चुका है, उसे पता है रुकने असम्बली के बयान से मुतालिक, लेकिन कमीशन कार्रवाई करने से डर रहा है। तो नाज़रीन, ये हालात हैं इस वक्त के, किस तरह कल ही ममता बनर्जी ने अमित शाह पर इल्ज़ाम लगाया था कि अमित शाह के जो है इशारे पर मगरबी बंगाल में 8 मरहलों पर इलेक्शन करवाने की कोशिश हो रही है और वो सब का सब बीजेपी के इशारे पर हो रहा है। तो इसी तरह इस तरह की वीडियोस जब सामने आते हैं और उस पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं होती, तो जाहिर सी बात है कि इलेक्शन कमीशन पर एक तरफा कार्रवाई करने और फिर जो है मरकज़ी हुकूमत कहें या फिर बीजेपी हुकूमत की गोद में बैठने का इल्ज़ाम तो लगता ही है और लगना भी चाहिए। इसलिए कि इस तरह की वीडियो जब सामने आते हैं उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होती। आइए नाज़रीन गिरामी, मैं आपको एक बार फिर यूपी को शर्मसार होते हुए दिखाना चाहता हूँ। बार बार शर्मसार हो रही है, इंसानियत बार बार शर्मसार हो रही है। उत्तर प्रदेश में ख़वातीन के लिए महफूज रहना दिन ब दिन मुश्किल नज़र आने लगा है। इज्तिमाई असमतदरी और नज़र आतिश किए जाने के वाक़यात लगातार सामने आ रहे हैं, लेकिन कोई हुकूमत संजीदगी से नहीं ले रही। ना मरकज़ी हुकूमत इस पर बयान देती है और ना ही किसी तरह की संजीदा होने का कोई इशारा देती है और ना ही यहाँ की यूपी हुकूमत जो योगी की है। ताज़ा मामला सीतापुर का है, जहाँ दिल दहला देने वाला वाक़या सामने आया। बाप बेटे ने मुबैना तौर पर एक खातून के साथ इज्तिमाई असमतदरी की और बाद में उसे ज़िंदा आग के हवाले कर दिया। इस दर्दनाक वाक़े की वजह से इलाके में इस वक्त हंगामा बर्पा हो गया है और बीजेपी हुकूमत के ख़िलाफ़ लगातार लोगों में इश्तियाल पैदा होता जा रहा है। ख़बरों के मुताबिक इज्तिमाई असमतदरी मुतासिरा खातून की हालत इस वक्त इंतहाई संगीन बनी हुई है। ज़िला अस्पताल में खातून का इलाज चल रहा है। इससे कबल सनसनीखेज़ वारदात की जानकारी मिलते ही ASP NP सिंह कसीर पुलिस फोर्स के साथ हेल्थ सेंटर पहुंचे, हालात का जायज़ा लिया। उसके बाद खातून को ज़िला अस्पताल के लिए रेफ़र किया गया। नाज़रीन, रिपोर्ट लंबी है, लेकिन मैं तफसीलात में जाने के बजाय मैं वाज़ेह और साफ तौर पर कहना चाहता हूँ कि यूपी के किसी न किसी इलाके से इस तरह की खबरें लगातार आती ही जा रही हैं, जिसको लेकर के जो कोई मुतालबा करता है कि इस वक्त यूपी हुकूमत में सदर राज नाफिज कर देना चाहिए, इसलिए कि हालात और जराइम का गिराफ इस कदर बुरे हो रहे हैं और जराइम का गिराफ इस कदर बढ़ता जा रहा है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। बिलखुसूस ख़वातीन के सिलसिले में जो जराइम मंजर आम पर आ रहे हैं वो इंतहाई तशवीशनाक है। नाज़रीन, आइए एक वीडियो में आपको बताऊं। अगर आप अचानक से किसी मकान को सड़क पर चलते देख लें तो यकीनन हैरान रह जाएंगे। सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो मंजर आम पर आया है जिसे देखकर हम हैरान रह गए। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है। यूज़र्स इस वीडियो को खूब पसंद भी कर रहे हैं। दरअसल अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में कुछ दिन पहले ऐसा एक नज़ारा देखने को मिला, जबकि जिसमें एक घर सड़क पर चलते हुए देखा गया, मगर ये घर खुद नहीं चल रहा था बल्कि उसे एक बड़ी मशीन के ज़रिए एक दूसरे से दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है। लेकिन इसकी वीडियोग्राफी ऐसी कर दी गई कि लोग जो है इसको देख कर के सोशल मीडिया में अलग अलग तरह के तबसरे करने लगे। लेकिन इस तरह की मशीनें मौजूद हैं कि आपको जो है जो तारीख़ी घर होते हैं, जो तारीख़ी चीज़ें मानी जाती हैं, जैसे हमने तुर्की का भी मंजर देखा, बल्कि हम लोगों ने भारत और बहुत सारे इलाकों में देखा कि जो तारीख़ी घर होते हैं, तारीख़ी म्यूज़ियम से इस तरह की कोई भी चीज़ें होती हैं उसको जड़ से निकाल करके उसको महफूज करने की कोशिश होती है। लेकिन इस घर वाला इस घर को इस कदर पसंद करता था कि वो जब दूसरी जगह मुंतकिल हो रहा था तो अपने साथ इस घर को भी ले गया और रास्ते में जब ले जा रहा था तो लोगों के लिए एक अचंभा लगा। उन्होंने वीडियो उठा करके उसकी बनाई और सोशल मीडिया में वायरल कर दिया। इसकी वजह से ये वीडियो वायरल हो रही है। ये सैन फ्रांसिस्को में एक शख्स को जब अपना घर बदलना पड़ा तो उसने जो है अपने साथ इस घर को भी शिफ्ट कर दिया था, जिसकी वजह से इस वक्त वीडियो वायरल हो रही है। आइए नाज़रीन गिरामी, एक और ख़बर की जानिब ले चलूँ और वो सवाल ये है कि क्या इराक़ के साबिक़ सदर
सद्दाम हुसैन की बेटी वापस इराक़ की सियासत में लौट रही है। दरअसल अल अरबिया को दिए गए एक इंटरव्यू के बाद ये तबसरा इराक़ में इस वक्त बहुत ज़्यादा मौज़ूए बहस बन गया है। अरब दुनिया के टेलीविज़न चैनल कई बरसों से इस खित्ते की सियासी बहसों और तनाव का मंजर बने हुए हैं। इन चैनलों के सियासी प्रोग्राम अक्सर मशहूर होते हैं, लेकिन चंद दिन में 100 मिलियन से ज़्यादा किसी प्रोग्राम का देखा जाना जो खित्ते के ममालिक के माबैन सियासी और सिफारती तनाज़े का सबब बनता है, मामूल की बात नहीं है। माज़ूल इराक़ी सदर सद्दाम हुसैन की बड़ी बेटी रगद सद्दाम हुसैन, जो अब 52 साल की हैं, अरब के एक चैनल अल अरबिया पर गुज़िश्ता हफ्ते 6 अक़सात पर मुश्तमिल इंटरव्यू नश्र हुआ था। ये गुफ्तगू अल अरबिया के मेज़बान सुहैब शरायर ने उर्दून में अपनी स्टूडियो में किया था। रगद, जो उर्दून में रहती हैं, आजकल अरब के सियासी मैदान में जगह तलाश करने के लिए कोशा हैं, जिसकी वजह से लगातार इस वक्त सुर्खियों में छाई हुई हैं और ये बहस जारी है कि वो इराक़ में दोबारा सियासत में आ सकती हैं। इस तफसीली गुफ्तगू में रगद ने मौजूदा इराक़ और बचपन की यादों दोनों पर बात की, लेकिन शायद इसका एक जुमला सबसे ज़्यादा मुतनाज़ हो गया कि ये पूछे जाने पर कि क्या उन्होंने इराक़ में सियासत में वापसी का इम्कान देखा है, तो उन्होंने कहा सब कुछ मुमकिन है। इराक़ी सियासत में रगद सद्दाम हुसैन की वापसी के इम्कान ने मेंबरान पार्लियामेंट के सख्त एहतजाज को जन्म दिया। पार्लियामेंट के कुछ मेंबरों के दबाव पर इराक़ी वज़ारत ख़ारिजा ने सऊदी अरब और उर्दून के सफ़ीरों को तलब किया ताकि इंटरव्यू से मुताल्लिक़ मुतनब्बे किया जा सके। यानी एक छोटा सा इंटरव्यू इन तमाम लोगों के लिए दर्द सर बन गया जो इस वक्त इराक़ के पार्लियामेंट में छाए हुए हैं। नाजरीन, रगद 1968 में पैदा हुई थी। उनकी पैदाइश से 1 साल पहले इराक़ दूसरे अरब ममालिक के साथ 6 दिन की तारीखी जंग में इसराइल के हाथों हार गया था, लेकिन रगद अभी भी अपनी माँ के पेट में थी जब उस वक्त के इराक़ी सदर अब्दुर्रहमान आरिफ को, जिन्होंने अपनी ज़्यादा मशहूर मिस्री हम मनसब जमाल अब्दुल नासिर के साथ अल नक्शा की तारीखी शिकस्त बांटी थी। बैसत पार्टी के ज़रिए 17 जुलाई की बगावत में माजूल कर दिया गया। उस वक्त 31 साल सद्दाम हुसैन, जिन्होंने 2 साल कबल बास पार्टी में एक अहम तकसीम का एहतिमाम किया था, वो इराक़ी बास परस्तों को बेदखल कर दिया था। दिमश्क में बास पार्टी अब मार्क्सिस्टों के हाथ में है और बगदाद में बास पार्टी सिक्योरिटी तंजीम बनने के लिए हरकत में थी, जिसमें नौजवान सद्दाम ने कलीदी किरदार अदा किया था। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, लंबी रिपोर्ट है। बास पार्टी ने ख़ुद को सोशलिस्ट कहा था और समझा जाता था कि वो जदीद तरीन अक़दार की नुमाइंदगी करती है। ताहम सद्दाम का कुंबा बहुत रिवायती था। सद्दाम की अपनी भांजी से शादी का एहतिमाम घराने के बुज़ुर्गों ने किया था और रगद ऐसे माहौल में परवान चढ़ी जिसमें तकरीत कबीले ने एक अहम किरदार अदा किया था। हालिया इस इंटरव्यू से रगद ने जैसे ही कहा कि वो वापस लौट सकती हैं और कुछ मुमकिन है, तो जाहिर सी बात है कि पूरी की पूरी नक्शा, सियासी नक्शा और पुरानी सारे की सारे चीज़ें इस वक्त निकल कर के सामने आ रही हैं और सद्दाम हुसैन और उनकी बेटी एक मरतबा फिर इराक़ी पार्लियामेंट में गूंजने लगे हैं और वहाँ के अखबारात में भी सुर्खियाँ बनने लगी हैं। यही बात है कि जो है इस वक्त पूरी तरह से इराक़ की सियासत में खलचल देखने को मिल रही है। बहरकैफ अगले आने वाले दिन बताएंगे कि रगद क्या वहाँ पर अपना वापस लौटेगी उर्दून से और वहाँ क्या सियासत में अपनी जगह बना पाएगी, या फिर जो है सद्दाम हुसैन की नस्लों से यहाँ की सियासत ख़त्म हो जाएगी। ये आने वाले दिन ही बताएंगे। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें। इंशाअल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खबर पढ़ने का तुमने भी अजब अंदाज पाया है, रवादारी के जज्बे ने भी तुम पे नाज पाया है। इसी राह में मोहब्बत का हंसी एजाज पाया है। तुम्हें हर अंजुमन में हमने तो मुमताज पाया है। तुम्ही से है तरक्की पर अजीज अंसार, सीधी बात अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात।